तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज एंड द स्टेज इज ऑल सेट फॉर टुडेज। पहले तो अभी जब तारीफ हुई थी ना, मेरा बीच में बोलने का मन था, मैं कहा होने देते हैं। Business comes first. या नेवर हैव आई एवर एक्सीडेंटली कॉल्ड समवन द रॉन्ग नेम। इसी एपिसोड में हम दोनों ने कर लिया है. अभी Specifically, if you look around any areas which is technically well developed, Bangalore हो गया, Delhi, Mumbai, you would find most of the people they have an account at Zerodha. So basically, I use it for two different purposes, if I have to explain. So Zerodha is basically for investing, जो long term वाली investing होती है. Yeah, because multiple times they have given me brand deals, so I have a inherent bias. ये तो bias है यार. But yeah, ठीक है, अब जिसको जो पसंद है. अरे भाई, मेरे साथ हुआ था, मैं एक बार वेबिनार कर रहा था. अब वेबिनार सारे ऐसे ही करते हैं, सूट पहनते हैं, ऊपर ब्लेजर डाल दिया, Correct. नीचे शॉर्ट्स पहन के बैठे हैं. ये अचानक से देवलेना का शो की जगह करण जौहर का शो बनते जा रहा है. आई फील इट इज समथिंग जो कि हम चूज करते हैं कि कहाँ पे इंट्रोवर्ट होना है, कहाँ पे नहीं होना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड आई बिलीव दैट दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, इट वाज सपोज्ड टू हैपन बिकॉज हाय एवरीवन, आइकन्स बिहाइंड ब्रांड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम बैक विद वन मोर एपिसोड एंड नॉट ओनली जस्ट वन मोर एपिसोड, आई एम बैक विद वन मोर सीरीज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत कुछ लेके आने वाले हैं हम आपके लिए एंड टुडे वी आर here with two more guests with me. Amazing guests, creators, influencers, working as a business owners. So a lot of things are there to talk. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा vibe create होने वाला है. तो I can't wait to introduce them. We have with us Abhishek Kar, who is a YouTuber, influencer. He talks about investment, he talks about funds, he is an author, he's a TEDx speaker, so a lot more. अभी देखते हैं अभिषेक के पास क्या है बात करने के लिए. बहुत सारा बज है अभिषेक. So आप क्या कहना चाहते हैं? How are you feeling today? Thank you so much for inviting me over here. Audience को मैं बता दूं कि हमको 3 बार बोला गया है पानी साइड में रख लेना. So I'm pretty sure this is not going to be an usual conversation. थोड़ा सा अलग होगा. But I'm really excited to join Devlena as well as Saurabh. And I'm pretty sure we will add some value to all the people who will be listening to us. I'm sure बहुत सारा interesting content आने वाला है आगे because wherever you people are there, content follows that. And I'm sure बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे अभिषेक. Uh, we have another guest, Mr. Saurabh Bhatnagar. Saurabh Bhatnagar, who is the founder and CEO of FlexiFunnel. He helps businesses and people to scale their business through online marketing and help them getting more revenue, clients, leads. And apart from that, Saurabh does a lot of other things. He is an amazing human. He talks and he's an amazing business person. And there are a lot of things to uncover. बहुत सारी चीजें हम uncover करेंगे through Saurabh, Abhishek. So Saurabh, how do you do this? Like आप इतने सारे ideas में काम कर रहे हो, तो ऐसा क्या होता है? Like you just get up in the morning and आपको ideas आ जाते हैं और आप उसको execute कर देते हो, क्या होता है? पहले तो अभी जब तारीफ हुई थी ना, मेरा बीच में बोलने का मन था, मैं कहा होने देते हैं. अच्छी अच्छी तारीफ हो रही है. तो आई वुड से राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ आइडियाज, आई एम ओनली वर्किंग ऑन जस्ट वन आइडिया. So there used to be a time when I was working on multiple things, but now I'm into just one thing, which is FlexiFunnel, जिसका आपने नाम लिया है. So now we come up with multiple ideas to scale this one single product. Okay. So कि how can we do multiple things कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, from marketing aspect, support aspect. So this is what we are doing. So yeah, I believe that you know what, I was just thinking about it. हम तीनों लोग, देवलीना, अभिषेक, मी, हम तीनों लोग अभी इसी महीने, जस्ट टेलिंग द ऑडियंस, सो इसी महीने आर्ट ऑफ लिविंग के एक उसमें सेंटर पे मिले थे. And I believe that this conversation that we are having right now, it was supposed to happen because it was a coincidence, or probably supposed to be a coincidence, that we met over there, and now this conversation is happening. So it was meant to be, and now we are here to share some value. So I believe that the audience is going to get a lot of good perspectives about a lot of new things. I'm sure, Saurabh. So आपने बहुत सारा काम किया है and when you have done a lot of work in the past, वो कहीं ना कहीं सब कुछ मिलके when you connect the dots, that
that make you where you are today. So maybe where you Correct. are today, FlexiFunnel. So that is a byproduct of what you have done in the past in multiple businesses with multiple people and in different countries. So amazing Right. work, very inspiring. Saurav and Abhishek, both of you. It's really inspiring to see the kind of work you people are doing. इतना buzz है, the internet is breaking out of storm, अभिषेक के contents and all. तो बहुत excited हूँ मैं आज, and the stage is all set for today's conversation. हम बहुत सारी बातें Yeah. करेंगे, but let me set the stage for today's first section, which is the brand war. I'll just share my screen. भाई तैयारी तो पूरी है, हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही है. हाँ. So our first section is brand wars, and let's recap the rules. बहुत ही सिंपल रूल्स है. रूल्स आर लाइक वी नीड टू चूज वन ब्रांड्स. जो भी आपको दिखाया जाएगा, आपको एक ब्रांड चूज करना है, और सारे क्वेश्चंस के बाद हम फिर से चूज करेंगे अदर ब्रांड. सो लाइक दिस वी आर मेकिंग द ब्रांड्स, लाइक कौन सा ब्रांड जीतने वाला है आज. ब्रांड्स जीतेंगे, फिर ठीक है. हाँ, फिर ब्रांड्स को लेकिन Yeah, all set. So here we come into this question called, आपका सबसे favorite, what do you say, broking app कौन सा है? So basically, I use it for two different purposes, if I have to explain. So Zerodha is basically for the investing, जो long term वाली investing होती है. So उसके लिए I use it. And Grow में जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उसका बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि कौन कौन से अच्छे एक्सप्लोर दैट ऐप के अंदर जाके कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बेटर रिटर्न दे रहे हैं. सो फॉर म्यूचुअल फंड्स आई गो फॉर ग्रो, फॉर लॉन्ग टर्म वाले के लिए आई गो फॉर Zerodha. हम्म. तो इसमें what should I put? Should I put grow? Like if you tell me which one has helped you doing the tricky investments. अगर You have to select only one. choose करना Okay, है. Zerodha. And Abhishek, you tell me which one you like the most. I would prefer Grow at this point of time. Grow. Good for mutual fund investments, no doubt about that. Lately, they have been incorporating good FNO features as well. Zerodha, no doubt, has a early bird advantage in terms of they came up with the least brokerage and their interface is actually good, specifically with respect to Kite. But Grow has been doing really well. If you look into the turnover and the gross revenue also, that has gone up significantly, and they have been giving good tough competition to Zerodha these days. And considering it being one of the fastest growing unicorns in our country, that is Grow. Okay. My thing, although competition was tough, but I would prefer Grow. Okay. So Also the reason is your because personal experience also. yeah, because multiple times they have given me brand deals, so I have a inherent bias. ये तो बाइस है यार. But yeah, ठीक है, अब जिसको जो पसंद है उस लेकिन हिसाब से. मेरे को ज्यादा प्रॉफिट Zerodha पे हुआ है, इसीलिए मैंने उसे पिक करा अभी तक. That's your bias हाँ, also. right. So now I have two mentors to guide me on Zerodha and Grow. कहाँ पे grow करना The है. thing is, na, Zerodha's interface is actually very addictive. It is so simple. The user interface is so simple. Right. Just go and invest. So for any beginner, specifically if you look around any areas which is technically well developed, Bangalore, ho gaya, Delhi, Mumbai, you would find most of the people, they have an account at Zerodha. So वो user interface जो Kite का इतना simple कर दिया है, others have tried to replicate. But the closest one which has reached is Grow. And Grow also started with mutual funds and now it has come down to equities and futures and option over the last couple of years. So by default, अगर आप वो जैसे बोलते हैं ना, इंडिया में एक पत्थर फेंकोगे तो हर 7 में से एक बंदा इंजीनियर निकलता है. Likewise, ब्रोकिंग अकाउंट में भी हर 5-6 में से एक जन के पास Zerodha का अकाउंट हो. But still my vote is for Grow. For Grow. Now Abhishek is a loyal user of Grow and थोड़ी लॉयलिटी दर बढ़ गई है. कुछ ऐसा ब्रांड Right, डील right. तो ऐसा कोई ब्रांड डील है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा होगा recent days में. So Grow के साथ multiple ways में I have worked. One was where they actually क्या होता है कि वो जो influencer रहते हैं जिनका उनको लगता है कि goodwill is good, so they would ask you to shoot a particular video on some of their features, and they are the ones who are going to run ads for their particular platform. So they take rights from you. So Grow ने मुझसे 3 months के rights भी लिए हुए थे. And I guess during जब renowned cricket matches होते हैं उस समय पे वो लोग इसको ज्यादा play करते थे. So that is one. उसमें भी I remember
they had very particular this thing कि shooting का camera ऐसा होना चाहिए, इधर ये light आनी चाहिए and all those things, and I'm like ये तो मैं सब करता नहीं हूँ. So Grow के साथ मैंने हर pattern से काम किया है. One of the patterns with which I worked with Grow was when they had a good mutual fund segment. So in order to create awareness, they were also creating webinars for people. So obviously that was a commercial deal with me. So they had asked that you can actually put it up on your stories and everything. And apart from that, let's do a webinar where we are going to educate the people for free of cost, anybody who is enrolling for that. So, I being an educator, I also love doing that. So Grow gives you that gave me that sort of flexibility in that. Awesome, super. So I want to tell our viewers कि ये paid partnership नहीं है कहीं पे भी. We have not taken anything from our brands. It's purely content and it's purely coming from the heart of our guest Saurav and Abhishek. So I just wanted to make it very very clear to our guest. Right. So भाई just curious, Zerodha ने कभी approach नहीं करा इसके लिए brand deal वगैरह के लिए? So interestingly, Zerodha को आप कभी भी नहीं देखोगे किसी को अप्रोच करते हुए ब्रांड डील करते हुए. The interesting fact is Zerodha grew from word of mouth. The very fact why both the brothers have become billionaires despite being bootstrapped is because उनका एक major expense जो branding और marketing का होता है ना, वो उन्होंने safeguard किया word of mouth से. So they emphasized heavily on the technical part. तो Zerodha सिर्फ affiliate plans देती है. So earlier the affiliate percentage used to be really higher for the people. But जब Zerodha भी मेरे पास आई थी, some of the top people were after me a couple of years back. But उस समय पे I had preferred to go with Upstocks. Now it's not because I didn't like Zerodha. The reason is because मैंने अपना calculation किया कि Zerodha was there with almost every second individual. So to push them to open another account in Zerodha itself, किसी family member का was more difficult as compared to pushing up a new broker with new features. So ये these days maximum of the brokers work with two variations. One is affiliate model जिसमें कि link आपके description या bio पे रहेगा, you know it सौरभ, कि उसका एक commission बनता है. And the second one is a fixed one. Fixed one पे I have worked more with Grow. Grow was more open in terms of its marketing activities. Upstocks भी किया, but Zerodha never does it with any influencer for that matter. So but for me, what is the inspiring part over here is कि the thing that we always talk about, the product that is always going to grow is the product जो कि आपका word of mouth से ज़्यादा spread हो रहा है. And Zerodha for me also was something जो कि मेरे को word of mouth से ही बताया गया था मेरे एक friend के through. And it turned out to be a really good platform for me. So ultimately for people जो कि इस podcast को let's say business aspect से देख रहे होंगे, so the message is that you work super hard on the quality of your product. That ultimately that product grows by itself. The word of mouth, the referral, it grows by itself because that is, I mean, personally, I'm a big advocate, let's suppose of Apple phones. Ki bhai, use this. So once you have used it, you don't want to go back to the other model. So again, those products that go by word of mouth is like the game changer ultimately. Absolutely. Yep. Now, Varsity is a free initiative wherein they try to impart knowledge around stock markets from basics. तो इससे क्या हो गया? They made a very quality-based product out there for creating awareness. Now, a lot of other competitors probably thought कि हम ये भी paid रखेंगे. If we are keeping a school, it should be paid. But Zerodha focused कि हमारा main है कि आप हमारे platform पे आओ, product को test करो. If you like the product, you stick around. So Zerodha has done a couple of, and the best part, so I'll just to conclude over here. So I had a conversation with somebody who you can say is kind of right hand of Nitin Kamat. So मैंने एक बार उनसे randomly पूछा, stays in Bangalore. I just asked him कि you must have received good packages from competitors like Grow and Upstocks and all these people. You never felt like leaving, So he said, yeah, I've been offered 3x of my existing salary. But the most important part about Nitin and Nikhil is anybody who's working for them, they've created a culture. And that culture is so enhancing. सबको मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको ESOPs दिए, ये दिए, and everybody knows कि ये ESOP जिस दिन भी अगर Zerodha list हो गई तो हम बैठे बैठे करोड़पति तो बन ही रहे. And the culture they have created has made their core employees so loyal that their attrition rate is very low. So ये कुछ aspects पे ना Zerodha has worked so well, and I was also surprised कि in such hyper competitive market अगर आप employee को retain कर सको good quality, that itself becomes a big challenge. So these were a few things which has helped Zerodha. Right. I mean, see, yeah, in terms of build, you were saying something. Yes, Saurav.
So that's what I was saying. In terms of the business side, if you see Zerodha and their the core team and the philosophy which they carry, I think that is the base which takes Zerodha to a place where it is today. As you said, like they have literally built a culture where people love to be there. And if your team is there, especially the senior folks are with you, then you can do a lot of things moving forward, right? Yes, sorry. Right. So I was saying that in terms of building a business, from the outside वो आपको बहुत ज्यादा ऐसे दिखेगा, अच्छा ठीक है एक ऐप ही तो है, लेकिन from the back end, you will realize इतना सब कुछ is happening behind the scenes in terms of building a business. There is a team loyalty, there is a team जो कि attrition नहीं हो रहा है, and they are connected with the culture. I mean, on the face you will not even realize it, but so much goes behind the scenes जिसकी वजह से actual में depend करता है कि business actually grow होगा कि नहीं होगा. So and this is like one more lesson coming from Zerodha, I would say. True. To make it simplify for the users, I know how much complexity the team goes through, just to make that look very simple, like how Zerodha is very simple to. Next question. These are very important places for all of us. तो सबसे favorite social media platform क्या है आपके लिए, अभिषेक? YouTube. I was like, why LinkedIn is not there? Because LinkedIn is my platform. Somehow LinkedIn is. Saurabh, आपको So which one is for me, again, I have two answers. So sorry to the audience once again. But for me, YouTube is for the learning perspective. But from the advertising perspective, the platform that makes me more money is Facebook. So अगर मेरे को सीखने जाना होता है तो YouTube पे, लेकिन अगर मेरे को ad चलाने हैं तो I go to Facebook. Shall I put Facebook? So I will pick one to Facebook, yeah. Oh, awesome. I thought Instagram आने वाला Business comes first. Yeah. ठीक है. तो अगर अभिषेक आपसे पूछा जाए कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप अभी के अभी अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो which one it would be? I have already uninstalled X. I guessed. X is already our X. Yes, it's already. See, there are multiple reasons. It's not like this thing. First of all, if you really want, so I have decent following over there as well. I think 350,000 or something, organically grown. The thing is, lately, since Elon Musk has taken over, their algorithms have completely changed. They're promoting more of hate, political based agenda, which is obviously going to clutter your mind. If you're doing something productive and ये दिन भर आपके दिमाग में political और ये चीजें चलेंगी, तो you won't be that productive. That is what I feel. That's one. Second is they played a Joomla called monetization. Interestingly, I have earned probably total आज तक मैंने X से निकाला होगा like 35,000. But mine was like return on investment निकालना है साल भर का 6,000 I have paid, so that is fine. Nothing more than that. So they are not even paying as much as the efforts a person is actually putting up there. Third is the impression rate over here organically has substantially reduced until unless you're not putting anything controversial. So it's no more the same place it used to be like 2-3 years back. And fourth is I am also looking from a business angle. If this is not going to turn into a good commercial thing for me, so why should I invest my time over there? Rather than that, I can invest better time on YouTube and Instagram and maybe also Facebook for that matter, rather than investing time. So ये 2-4 reasons हैं जिसके चक्कर में X anyways I've uninstalled, and makes no sense because I've seen people who are still active on X in my community. I don't know about others who have been regularly posting, but their impressions have taken a dent. 6 months back, the same kind of post used to get, let's say, 100K impressions. Now I see is they're just getting like 20K. They are still active over there and still they're not getting the impression. So first is Elon Musk is trying to bait, या तो तुम पहले टिक लो, टिक लेने के बाद भी if you're not giving that much of impressions, I guess not a worthy platform to be. True. Right. तो सौरभ, अगर मेरे को आपसे पूछा जाए कि हैव यू एवर हैड अ फियर ऑफ लाइक अकाउंट बीइंग हैक्ड, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट? नहीं यार, मेरे साथ थैंकफुली नहीं हुआ है. मेरे अकाउंट बैन बहुत हुए हैं, लेकिन हैक कभी नहीं हुए हैं. So basically, Facebook ads वगैरह में ads, I'm talking about my ads account. So ads वगैरह में there is a very common narrative कि ads account generally ban होते ही हैं because somewhere down the line, when you are paying money to Facebook, तो a lot of compliances come into the picture versus जब आप normally as a user किसी social media को use कर रहे हो. So when there are so many laws, so
unintentionally you sometimes break some laws. So इस तरीके से आपके अकाउंट्स बहुत बार बैन हुए. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स में बिफोर आफ्टर की पिक्चर अलाउड नहीं है. अब मैंने अपने एड्स में बिफोर आफ्टर दिखा दिया कि बिफोर टेकिंग आवर प्रोडक्ट कस्टमर के रिजल्ट ऐसे थे, अब ऐसे हो गए. सो आई वाज नॉट अवेयर कि उनके ऐसे अलाउड नहीं है. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हुआ है, लेकिन या हैक कभी नहीं हुआ थैंकफुली. सो या नाइस. अभिषेक, आपको कभी ऐसा डर हुआ है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, होने वाला है? हुआ है एक आध बार. These days I don't know, something strange is happening. The moment in the morning I'm actually opening my cell phone, switch off से on करके when I open Instagram, तो हर बार मुझसे पहले अपना आईडी लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है. सो बट देन आई डोंट नो, इट कुड बी सम टेक्निकल दिस थिंग. मेरा कुछ लोकेशन बदल जा रहा होगा या पता नहीं. आई हैव टू चेक इट विद again I'll consult YouTube for that matter, some videos about if this is happening with somebody else also. But वही है कि an Instagram coach told me कि अगर आप 2-factor authentication चालू करके रखते हो on various platforms, 90% of chances of you getting hacked is actually reduced, diminished. यस. तो वही है, मेरे साथ भी हुआ था. लाइक आई गॉट स्कैर्ड दैट मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाएगा, एंड इंस्टाग्राम इज वेरी वेरी क्लोज टू मी. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि आई सॉ समबडी इज लॉग इन फ्रॉम सम अदर कंट्री. तो एंड कुछ डीएम्स आए उसके, एंड उसके बाद 2 दिन हुआ ऐसा. देन आई नोटिस, तो मैंने फिर से 2-factor ऑथेंटिकेशन ऑन किया, एंड देन आफ्टर दैट आई सॉ कि इट इज रेक्टिफाइड. तो अभिषेक, It is व्हाट यू आर actually सेइंग? scary in the sense any It's influencer or scary. any person who is working on social media, for them, for me, all my platforms are assets. तो अगर मेरा एक asset ही गायब हो जाता है किसी दिन पे, so obviously that's a Correct. big loss for us. करेक्ट. सो हमारे विनर्स यहाँ पे है फेसबुक एंड यूट्यूब. आई थॉट इट इज गोइंग टू बी इंस्टाग्राम बिकॉज आई लाइक इंस्टाग्राम द मोस्ट. बट कोई बात नहीं. यहाँ ठीक पर है. मेरे को लग रहा है मेरा और सौरभ का सेम हो सकता है, बट लेट्स सी, क्योंकि एवरीवेयर ही इज सिलेक्टिंग 2, सो आई एम नॉट वेरी श्योर. यहाँ पे इट्स ओनली वन ब्रो, एंड आई बिलीव ये वन ही है. हाँ, कौन ये सा? वन ही Which होगा. one? I Amazon. hope it's Amazon. हाँ. Yeah. Let me चलो. guess. Yeah. Okay. If any of us was doing drop shipping तब Alibaba pick कर लेते, but yeah, Amazon. अभी Amazon है, राइट? तो अभी तक सबसे Yeah. एक्सपेंसिव शॉपिंग क्या की है सौरभ आपने ऑन Amazon? शायद एसी लिया होगा, या Awesome. फिर कैमरा. आई गेस ये 2 चीजें, एसी या कैमरा या लैपटॉप में प्रोबेबली. सो या ओके. अभिषेक, Yeah, सबसे I am still little traditional in terms of online ordering, although I know it's safe. हाई But फाई. when it comes to high-end expensive electronics, I don't know. I have my own hesitations out there. But अगर मैं ऐसा pooled order की बात करूं, मतलब a single order which I have punched over there, it could be 70-80,000 का होगा, all books. अच्छा. एक ऑर्डर. मतलब उसमें 20-20 का लगता है, आई थिंक सो. 15-20 करके लगता है, ऐसा करके कुछ रहता है. As far as I remember, there are certain limitations out there as well. तो मैंने करीब, मतलब एक दिन का मैं बता रहा हूँ यार, एक दिन का बता रहा हूँ. अच्छा, ओके. So Yeah, that way you must have exceeded, I know, with the equipments and all. And उसमें भी मैं बताता हूँ कि जो वो 80,000 था, उनमें से करीब करीब मैंने 3,000 या 4,000 का वो करा है. Because they also got, मेरे को जो dispatch हुए, there were other publishers out there from अच्छा. different places. तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा उनका झोल झपाटा हुआ, मतलब कुछ डिलीवरी बीच में रह गई, because they were sending me cartoons भर भर के Okay. दे रहे थे. तो फिर उसमें, but now I'll tell you the reason why I liked Amazon is because उनके कस्टमर केयर से बात करके the ease at which all this process actually happened. I mean within 2 days, और एक बंदा आया, उसने लिया जो भी एक आध मेरे को देना था, और प्लस मैंने उनको बताया कि मेरे को ये डिलीवरी नहीं हुए, तो हाउ कैन यू एक्चुअली चार्ज फॉर मी. एंड देन वो क्या करते हैं, आई थिंक दे गिव 2 ऑप्शंस. आपके जिससे आपने पेमेंट किया उस पे लेना है, या फिर Amazon के अकाउंट में हम आपको वो दे दें. वाउचर तो नहीं, वो कुछ Amazon अकाउंट कुछ एक बोलते हैं. तो मैंने बोला कि ठीक है, उसी पे दे दो. तो दैट वाज देयर. और उससे फिर मैंने वेइंग मशीन खरीदी, जिसको यूज नहीं करता हूँ, वो बात अलग है. बट I think because of that plank challenge is happening every day, right, Abhishek? Yes. I saw your stories. Today I did 40 seconds of plank. Awesome. Wow. All the very best.
Thank you, thank you. मैं देख भी रहा था आज आपने वो डाला हुआ था योगा विद अ स्माइल. Yeah, yes. ट्रू. एंड ऑल्सो अगर हम कस्टमर सेंट्रिक है या फिर जो भी हमारा कोर फिलोसफी ऑफ द बिजनेस है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द people who are running the business to the all the stakeholders including your security people, सब लोग अगर उस चीज के बारे में जानते हैं, तो I think you're half the way towards your vision and mission. राइट. Right. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. कोई तो ऑप्शन इसमें से कोई लेगा, अब लेट्स सी. आप बताइए सौरभ, व्हिच लेट्स वन सी इज योर सौरभ, फेवरेट? ये Okay. भी सेम हो सकता है, बट लेट्स सी. होना चाहिए. फॉर मी इट्स जियो. Okay. क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने इंटरनेट को एक्सेसिबल बना दिया है विद द एंटायर कंट्री, विद इन द एंटायर कंट्री, सो वो जो अमाउंट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो कि पूरे देश को मिल चुका है बिकॉज ऑफ देम इज समथिंग विच इज ह्यूज. Okay, so I would say Airtel in this case. Obviously, Jio has its own added advantages and everything, but Airtel is also playing smart. So what Airtel did is, Airtel simply decided in terms of their marketing strategy that we don't want normal customers. I mean, एक ARPU करके होता है, Okay. which is used in the telecom industry. That is the average rate per user which somebody is getting. So एयरटेल ने बोला हमारा आरपू हम हाई रखेंगे. सो इफ जियोस आरपू इज कमिंग अराउंड लेट्स से 60 रुपीज, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वन. एयरटेल सेड हम 350 रखते हैं. So Airtel started hunting for bigger clients and bigger niches and offices and commercial people. So this way what happened is, Jio के 10 लाख कस्टमर जितना उसको बिजनेस बना के देंगे, अगर Airtel at certain point of time, if its services are good, with just like 3 lakh clients, they can get the same amount of revenue in this thing. So that's a smart business decision also, because they realize कि Jio के साथ उधर लड़ने का फायदा ही नहीं, हम लड़ ही नहीं पाएंगे. तो again a little biased, but हाँ, Airtel I would say. एवरी डेमोग्राफिक इज यूजिंग, तो हमारे लिए बहुत सारा काम बढ़ गया. एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज टू डू द बिजनेस इन अ वेरी डिफरेंट लेवल नाउ. लाइक द क्रिएटर्स इकोनॉमी हैज बूम्ड एंड आई एम श्योर इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, आप एक बड़ा चंक जियो को दे सकते हो उसका क्रेडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, व्हिच वन इज योर फेवरेट कार्ड? अभिषेक. सौरभ के वो सारे होंगे, पहले Yeah. सौरभ बताएगा. मैंने आंसर कर दिया था यार. इसमें कोई भी बायस नहीं है भाई. इसमें सिंपल मास्टर कार्ड वीजा है, और मास्टर कार्ड ने पहले हाथ में आया था तो पहले मास्टर कार्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया था, तो इट्स गोइंग वेल. और यही एक Very मेरे पे loyal. कार्ड है जिसका मेरे को पॉइंट्स भी मिलते हैं, और मेरे को पता है कि पॉइंट्स लेते कैसे हैं. वैसे फॉर And- चेंज इधर मैं भी सेम ही हूँ, although I have an MX also, but for some reasons I would say Mastercard only. That's it. Yeah. ज्यादा सही है. ठीक है, वो भी तो record अभी हो रहा है. आगे बढ़ जाते हैं. होने दीजिए, ठीक है, लोगों को भी पता लगेगा, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा नहीं हाँ. पता. हाँ, But वो हम हटा exactly. देंगे. ओके, This is तो interesting. अभी ये this हमारा one, अलग हो जाएगा मेरे को लग रहा है, but let's see. हाँ. सौरभ. which one? ओके, फॉर मी ब्लिंकिट, क्योंकि मेरी सिटी में जेप्टो नहीं चलता है, देहरादून के अंदर बिग बास्केट नहीं चलता है, इंस्टामार्ट भी शायद नहीं चलता है, या बहुत कम एरियाज में बहुत कम डिलीवरी देता है. तो मेरे पे चॉइस ही नहीं बची है अदर देन ब्लिंकिट. अभिषेक, आपका? मैं बिग बास्केट ले लूंगा. ब्लिंकिट आई नो इट्स ऑन फायर, ऑल्दो आई हैव एक्सेस टू अदर्स, बट वन सिंपल रीजन इज, जो मेरे को एक्सोटिक फ्रूट्स मंगाने रहते हैं ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं बिग बास्केट में अच्छे लगते हैं. एंड दे हैव फेयर एक्सेस ऑफ एक्सोटिक फ्रूट्स फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेसेस आल्सो. तो मेरे को वो एक थोड़ा सा सही लगता है. इट डिपेंड्स, आई थिंक लोकेशन टू लोकेशन रहेगा. दिल्ली का अलग रहेगा, पुणे का अलग रहेगा, बैंगलोर का अलग रहेगा. बट फॉर मी, सिंस इट हैज सर्व्ड वेल ओवर देयर and not that expensive also, so I think obviously वो अपने एक margin तो add करते ही हैं. मतलब if you go to a vegetable vendor and you try to take it, that would be different. But then I liked this thing, timely delivery and all those things. Blinkit is good, but big basket क्योंकि अच्छे खासे fruits नहीं है इसमें. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. ठीक है अभिषेक, मैं पिछले दो का पहले मैंने बताया. चलो, mine is Netflix. नेटफ्लिक्स. तो आपने ऐसा लाइक व्हाट वाज योर लास्ट शो दैट मेड यू रिन्यू योर नेटफ्लिक्स? Okay, the last one मैंने ये देखा हुआ था यार, The Witcher.
although it's an older अच्छा one, but I again saw that. उसका जो सेकंड पार्ट था वो मैंने पूरा देखा नहीं था, वो आधे में कट गया, तो फिर अगेन आई हैड टू डू द रिन्यूअल. एंड मोर ओवर सी आई टेल यू, नेटफ्लिक्स इंडिया में इसलिए नहीं चल पाता है ज्यादा बिकॉज इवन दो उनने दाम कम कर दिए हैं, दे आर केटरिंग टू अ नीश ऑडियंस जिनका कंजम्पशन हैबिट काफी अलग होगा. I mean, you go to Desi Janata and Desi Janata doesn't want to consume a lot of this Witcher and all these stuff. सौरभ. Awesome. So for me, Netflix is the answer. लेकिन आंसर इसके the reasoning behind that is not any series, क्योंकि मैंने honestly कोई series उस पे देखी नहीं है, neither on any other channel. But I have accounts on Disney, Prime, Jio पे क्रिकेट मैचेस आते हैं तो make sense. या जिस What पे भी about आ Hulu? जाएगा. भाई हुलू नहीं पता Hulu? मेरे को यार. मैं तो Hulu पहली बार सुना हूँ आज. Okay. नहीं, I have idea, लेकिन I have not seen it. लेकिन for me, it's more of a जैसे जो the things that I consume, I prefer to go to let's say IMDb, and वहां पे Okay. जाके rather than going on Netflix, वहां पे explore करने से ज्यादा कि मेरे favorite genres में कौन सी movies top list में है, and then I read the reviews, and फिर मैं देखता हूँ वो कौन से platform पे. Done. हाँ जी. तो which one? जब फ्री टाइम मिलता तो हम कहाँ जाते हैं यहाँ? सौरभ जरूरी है इन चार में से ही पिक करना है? मतलब अभी तो यही डाला है हमने, Okay. आप बता सकते. Okay. So यार मैकडोनल्ड्स, लेकिन इट्स लाइक चारों में से ही मैं इन चारों में ही इतना नहीं जाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अगर चार में से पिक होना है तो मैकडोनल्ड्स. तो यार आई एम द फूडी, आई लाइक हर जगह का अलग 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 है, बट माय आंसर एज ऑफ नाउ वुड बी मैकडोनल्ड्स ओनली. इनका जो मैकफ्लरी आता है ओरियो के साथ ड्रिंक के लिए वो सही है. देन सिंस लेटली आई ओनली कंज्यूम वेजिटेरियन दिस थिंग, तो वेज इनके बर्गर्स भी काफी अच्छे हैं, रैप्स अच्छे हैं इनके. इसके अलावा जो पेरी पेरी के साथ इनका फ्रेंच फ्राइज देता है, आई थिंक सो इट्स बेटर देन बर्गर किंग एंड अदर्स आल्सो. सो मैकडोनल्ड्स लेंगे. ओके, नाउ वी हैव ऑन द स्क्रीन. तो अभी हम मेरा मैजिक गूगल पे की कर लो. शुरुआत गूगल गूगल पे कर ले. हाँ. फोन पे. रियली राहुल, फोन पे? या सौरभ या फोन पे. सो सॉरी, हाँ सॉरी यार, फोन पे. चलो ठीक है हाँ यार, भाई. फोन पे भी बुरा नहीं है, बट ठीक है. और नेचुरल हैबिट ऐसा बन गया है कि सबसे पहले पे. और इनफैक्ट फॉर मी, मैंने कल देवलीना को बोला भी था, मतलब आई हैव पर्सनली सीन कि पेटीएम का सक्सेस रेशो सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनीबडी, लेकिन स्टिल वो हैबिट ऐसा बन चुका है कि वो हाथ पहले फोन पे ही जाता है. अच्छा. आई थिंक गूगल पे पे, लेकिन रीजन नहीं, मेरा वही रीजन होगा. आपका हैबिट फोन पे बना है, मेरा हैबिट गूगल पे बना है, तो आई थिंक दैट मेरा कुड बी भी. द. कैशबैक्स कहाँ पे मिले हैं सबसे अरे ज्यादा? पहले मिलता था गूगल पे में, आजकल अभी उल्लू नहीं. बनाते हैं, अब कुछ नहीं मिलता पहले है. कौन सा सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैशबैक मिला आपको? कितना ज्यादा? 325 रुपए मिले थे मुझे. सर, अब आपको याद है कोई कैशबैक शुरुआत? भाई मेरी तो पूरी कहानी है गूगल पे के कैशबैक की. तो गूगल पे ने क्या करा था, अगर आपको याद होगा या पता होगा, गूगल पे ने ये बोला था कि आप जितने लोगों को रेफर करवाओगे आपको 51 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर उनके फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे अलग मिलेंगे. तो जो मेरा रेफरल कोड था मैंने उसे फेसबुक ऐड पे चला दिया, क्योंकि उस समय गूगल पे नया था. तो वहां से आई मेड अराउंड मोर देन 50,000 समथिंग रुपीज, क्योंकि इतने लोगों को मैंने साइन अप कराया ऐड चला के. और वो एक और मेरा ऐड अकाउंट था. चक्कर में गूगल पे ने अब हमको देना बंद कर दिया है, ही इज द रीजन. और वो मेरा फेसबुक ऐड अकाउंट से बैन हो गया था. अभी यहाँ पे आते, कितना ट्रैवल करते हैं आप लोग? हाउ मेनी स्टेट्स? हाँ. On road, I wouldn't say I travel to a lot of states. Maybe Saurabh, via road, you travel a lot of states. नो भाई, या तो प्लेन में गए हैं या फिर वहां पे कैब ले लिया. वो कौन सा तेल डला है वो मेरे को नहीं पता. Okay, in general फिर हम बोल सकते हैं. What do you prefer? देहरादून में कौन सा चलता होगा दादा यार? Very sure. यार मेरे घर के ठीक पास में जियो वाला है, तो अभी ज्यादातर आदत वहीं की हो गई है. या मैं I would say it, मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, but it goes between HP and BP. I would say BP ले लीजिए आप. BP, भारत पेट्रोलियम. या आई विल टेल यू क्विक फैक्ट अबाउट दिस. राहुल भैया ने ना पेट्रोलियम में, क्योंकि उनका इंजीनियरिंग भी पेट्रोलियम का है, और उन्होंने पेट्रोलियम रिफाइनरी में IOCL में जॉब करी है. तो वहां से जो तेल बनता था वही तेल, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम, या जितना उन्होंने सुना था,
तो वही तेल सारी कंपनीज में सप्लाई हो रहा है, वही इंडियन ऑयल में भी बिक रहा है, वही भारत पेट्रोलियम में भी बिक रहा है, वही एचपी में भी बिक रहा है। सो ऑन द फेस यू विल ओह, बी लाइक कि अच्छा ये अलग अलग कंपनीज है, लेकिन बैकएंड से वो एक ही जगह से आके सब पे सब बिक रहा है। लोन सो आ रहे हैं। So this, let's see how much Instagram learning we do और क्या क्या करते हैं। तो आई कौन वुड यूडेमी। सा, which से one? यूडेमी, हाँ मेरा भी यूडेमी। Hmm. Are you हम्म। like यस भाई। Ola Uber person or यार ये थोड़ा 50-50 में सौरभ का आंसर अलग हो जाता है यार, बट ओला, ओला, टेक ओला फॉर मी। उबर उबर फॉर मी। देखा, देखा। मुझे भी लग रहा था। We'll ask Saurabh first. Then हाँ, Abhishek your मेरा batch up. स्टोरी मेरा स्टोरी ये है कि मैं उबर से इतना बड़ा वाला बैन हूँ हम्म। कि उन्होंने मेरे को बैन? इतना खतरनाक बैन करा हुआ है। हाँ। तो मुझे लगा कॉलेज आपने टाइम पे, बैन किया है। नहीं 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 नहीं, तो कॉलेज टाइम पे जब उबर आया था भारत के अंदर, तो हम्म। वो एक टाइम था जिस समय मेरे पे आप ये लगा लो तकरीबन 100 सिम कार्ड्स हुआ करते थे, जो कि अब मैं सौ। अपने या अपने दोस्तों की 100+ इजीली। तो और हमारे 3 दोस्तों का गैंग था, तो मिला के 300+ होंगे। तो हमारा एक उस समय वो चलता था कि नए सिम पे आपको 40 रुपीज का फ्री टॉक टाइम मिलेगा। और वो सारी वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया, यूनिनॉर, ये सारी कंपनीज आपको 40 रुपीज, अब या तो आप पैसे डला के रिचार्ज कराओ या फ्री में जाके आईडी दो और आपको 40 रुपए का टॉक टाइम मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिम ही तो बदलना है, जिससे बात करनी है उससे बात कर ली और फिर कॉल नंबर मिलाए जा रहे हैं। तो और उसका फिर आपको कैशबैक भी मिलता था, वो भी एक अलग हैक था। तो ऐसे में भी इतने सारे सिम कार्ड्स हो गए थे एंड समहाउ दे वर एबल टू ट्रेस कि ये आईडी वाला बंदा है। अच्छा। तो और उबर पे उस समय एक कहानी और चलती थी कि आपको सिर्फ 1 रुपए डालने हैं और आप कितनी भी हम्म। लंबी ट्रिप ले लो, अगर आपको पता होगा तो। तो ऐसे मैंने अच्छा। उन सारे अलग अलग नंबर से 100 नंबर से पता नहीं कितनी राइड्स करी 1-1 रुपए में। ओ तो माय फिर उन्होंने गॉड। मेरे नंबर को ऐसा बैन मारा कि भाई इसको नहीं देना हमें। तो अब यू आर मैंने स्टिल करा बैंड? फिर अभी एक आई एम स्टिल बैंड। so ओ माय Saurabh likes Uber because he has exploited Uber like anything, okay? गॉड। दैट्स व्हाई ही लाइक्स ओला। भाविश। Yeah, अभी थोड़े से अपग्रेडेड ये सेक्शन में सौरभ हम जा रहे बताएंगे। हैं। तो सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट, और मे बी सबसे पहला गिफ्ट आपने क्या दिया होगा, लाइक अपनी सैलरी से और मे बी इनिशियली? यार देखो, ये मैंने आपको कल भी रिप्लाई करा था, मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ, नो लग्जरी ब्रांड एवर। अरे सो फॉर मी, सेम। येट तो अभी मनी का थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू अपन करते हैं, तो समझ नहीं आता कि यार ये थोड़ा ज्यादा महंगे लगते हैं मेरे को। तो इन हाँ हाँ। जनरल आई प्रेफ मतलब मैं किसी और के ब्रांड को वो करूँ प्रमोट, इससे अच्छा है मैं अपने खुद के ब्रांड को फ्लेक्सी बनाऊं। अभिषेक इज ऑल्सो वेयरिंग यस। हिज, अभिषेक। मैं अभिषेक तो का खुद ही तो ब्रांड हो गया हूँ। awesome। हाँ। या वहां पे हम पहुंचेंगे। बट अभिषेक आपके पास कुछ है इसके लिए, इस सेक्शन के लिए? यार इनमें से तो कोई नहीं है। माय थॉट सिस्टम इज लिटिल डिफरेंट इन वॉचेस। टिसॉट्स का मैंने एक ट्राई किया हुआ है। आई वियर इट ऑन वेरी रेयर ओकेजन्स, बट दैट्स आल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव। 81-82 थाउजेंड का है, बट दैट्स फॉर माय माय दिस थिंग ओनली। सो एक टिसॉट्स का मुझे मैन ये तो हाउस करके फॉन्ट ही एक अलग है। उनका चलता है, TISSOT। हम्म। सो दैट्स टिसॉट्स का मैन सेक्शन में पावरमैटिक एक आता है। सो आई थिंक वो 81-82 थाउजेंड का था, बट अगेन वेरी लिमिटेड टाइम के लिए मैं वो पहनता हूँ। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन। आई एम नॉट आस्किंग मच रीजंस, बट हम जल्दी जल्दी इनको आगे बढ़ा देते हैं। आप चाहे तो रीजन बता सकते हैं। ओके ठीक है। विच वन? ठीक है, फॉर मी, यार मेरे लिए BMW यहाँ पे ऑप्शन BMW, में यस नहीं है, यस यस, आई गॉट लेकिन इट। आई हैव BMW X1 सेकेंड हैंड मैंने ली थी और आई लव इट। तो सो या दैट्स स्वीट। व्हाई। BMW एंड अभिषेक? Mine is Aston Martin, Vantage जो इसका आता है, Aston Martin, that's। ये ओके, तो चलो स्मार्टफोन। एक जगह पे तो हम सेम हो जाएंगे, चलो। मुझे भी लगता है। हाँ, मैंने पहले भी होपफुली। बोल दिया ये वाला तो यार। हाँ, तो इसलिए मैं मैंने बिना अज्यूम कर रहा आंसर हूँ। सुने हाँ चलिए, कर हाँ। दूं? कर ही दीजिए। हाँ, कर ही दो, हाँ। दिस इज मी ऑल्सो, सेम। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग। यस भाई। दिस इज
वही एक ही आंसर है इसका, तो अब ले ही लो। वही करते हैं। इस चीज की इतनी समझ नहीं है मेरे 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 केस में, तो ऐसा मुझे है भी। क्योंकि M1 मेरे M2 वाली मुझे चिप मुझे मेरे भी को। इतनी समझ नहीं है, बट हाँ, रिलेटिवली इफ हाँ वी से विद व्हाटएवर वी हाँ हैव हर्ड, ऑब्वियसली हाँ हम्म। दिस वुड फॉल हाँ, इनटू मैंने भी ये सुना है कि इट इज वेरी गुड। या लेकिन हम्म। अल्टीमेटली इंटेल हैज सर्व्ड अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब हाँ इतना या आइडिया तो ही नहीं है इसके नो कमेंट करने नो के लिए। ग्रजेस अगेंस्ट इंटेल, बट हाँ, ठीक है। राइट। नाउ इट्स वेरी क्विक। जीरोधा। हम्म। यहाँ पे जीरोधा ले लेते हैं या फिर ग्रो। ग्रो इज लाइक बोथ ऑफ यू, आई नो। ग्रो एंड यूट्यूब में विच वन यू वांट टू पुश इट एज अ यूट्यूब अरे ब्रांड? कर लो फेसबुक यार, फेसबुक फेसबुक भी तो यूट्यूब बोलो। कर लो यार, यूट्यूब कर लो यार। जल्दी से यूट्यूब को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, या फॉर मी amazon। फेसबुक। अच्छा। अच्छा, इधर ओके, एक एक ही ही आगे जा होगा, रहे हैं। एक ही ओह। जा रहा है। आप कर दोनों लो सुलह यार, कर लो। आपको कहीं और एक मैं अपन कर लेंगे। मैं तो फेसबुक को सबसे आगे डालने वाला था, मेरा तो पूरा मनी मेकिंग चैनल ही वही अरे है। चलो आगे आप बता दीजिए फिर इधर। एयरटेल, जियो, amazon। अमेजोन यार, यहाँ तो सॉर्टेड है आई बिलीव। दोनों ही। अरे वाह। हाँ, मेरे amazon। लिए इजी था, मेरे लिए इजी था। हाँ जी, मास्टर कार्ड, ब्लिंकिट, बिग बास्केट भी है। मास्टर कार्ड कर लेते हैं यार, मास्टर कार्ड, हाँ। यूटिलिटी वाइज इट कुड बी। हम्म। नेटफ्लिक्स, मैकडोनल्ड्स। नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। मैकडोनल्ड्स आपको अनहेल्दी की तरफ बनाता है। नेटफ्लिक्स एंड चिल हो गया यहाँ पे। नहीं, हम हाँ। अनहेल्दी खाते हैं, लेकिन पसंद वाला चीज दूसरी है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ। नेटफ्लिक्स कर लेते हैं फिर। वो ये पूरा ओके। माइंड मैप टाइप कुछ बनता जा रहा है, फाइनल विनर हाँ, देखते हैं कौन होता है। हाँ हाँ। amazon एंड यूट्यूब एज अ यूट्यूब। ब्रांड। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब। यूट्यूब इज, आई थिंक, काफी आगे बढ़ने वाले हैं रेस में। मास्टर कार्ड एंड यहाँ पे कौन सा था, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स था। मास्टर कार्ड पे नहीं क्या? नेटफ्लिक्स मेरे को ज्यादा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई बायस ही नहीं है, मास्टर कार्ड है, वीजा है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलो, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, लेट्स टेक अरे नेटफ्लिक्स। यहाँ पे। हाँ, उधर उधर टक्कर करवाएंगे ना यूट्यूब के साथ, कोई तो उम्मीदवार हो अच्छा। ओके, ये बिल्कुल। तो अब इसमें आप। ना देवलीना आप ना पिक कर लो, क्योंकि उसने गूगल पे चुना है, मैंने फोन पे, अब आप अपने हिसाब से हाँ चलो, डालो। इसमें फोन पे कर लो यार, चलो इनको अरे इस मैंने तो बार दे देते जीपे हैं कर यार। दिया था। और चलो। नहीं, इन सौरभ को भी तो फोन एक पे दिया जाए उधर सौरभ अपन ने, लाइक बिकॉज द। उधर अपन ने फेसबुक इनको नहीं दिया ना, तो इधर थोड़ा ये अपन दे देते हैं। फोन पे इज फर्स्ट बैलेंस कर चॉइस रहे सौरभ का। हैं। मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगा था, अच्छा फोन पे। ओला, इधर यूडेमी उबर, कर लेते हैं यूडेमी। यार, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तभी तो बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया। यूडेमी, या करेक्ट। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड। ओ, दिस वाज हाँ वेरी जी। प्लान्ड वे में इन लोगों ने वो करा हुआ था कंपैरिजन। टी शर्ट ये, BMW, एस्टन मार्टिन, टी शर्ट। BMW फॉर मी, टिसॉट्स फॉर अभिषेक। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो। यार एस्टन मार्टिन ले लो यार, ये रास्ते में उड़ा हाँ, भी देते हैं चलो मेरे ठीक को। है, हाँ चलो ऐसा कर लो। मैंने वही सोचा कि जब दो अलग अलग लोगों का है तो मैं तीसरा ले लेती हूँ। हाँ, इधर तो उसके एप्पल नीचे। आ जाएगा नीचे। अरे हाँ, मूंगफली। ये तो एप्पल वैसे एप्पल हो रहा है यहाँ पे तो यार। वही या। 3 एप्पल हो गए। हाँ, फोन पे, यूडेमी, बढ़ेगा यूडीमी। इंडिया। फोन पे। अरे यार, कहीं तो कर लो हम्म। यार, यूडीमी कर दो। चलो यूडेमी कर लो यहाँ पे। चलो यूडेमी। यूडीमी। यूडेमी आगे बढ़ चुके फोन पे से। एंड यहाँ पे एस्टन मार्टिन एंड एप्पल में से। एप्पल कर लेते I- हैं। एप्पल वही एप्पल एप्पल। एप्पल कर कि लेते हैं, हाँ। फाइनली इट्स गोइंग टू बी यूट्यूब वर्सेस एप्पल। फाइनली मुझे भी वही लग रहा यस। है, लेट्स सी। यूडेमी एंड एप्पल। एप्पल एप्पल एप्पल। एप्पल। तो अपन पढ़ेगा फाइनली इंडिया। इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि एप्पल डिवाइस पे यूट्यूब से पढ़ लो। यूट्यूब, हाँ, नेटफ्लिक्स इजाइले आप कहाँ। यूट्यूब ले आओ, यूट्यूब ले आओ। हाँ, यूट्यूब ले आए, यस, हम अभी फाइनल्स में हैं। एंड हमारे विनर है 3, 2, टाई करवा दो 1। यार। हु इज द विनर? सौरभ, एप्पल। अभिषेक। गड़बड़ हो रही यूट्यूब है। यार। दिल, यूट्यूब। दिल यूट्यूब, लॉयल। धंधा पानी वहीं से आया धंधा पानी। है।
नया वाला जो भी कहे इन्फ्लुएंसिंग का, so राइट। YouTube मतलब एकदम। मेरा क्रिएटर जोन थोड़ा कम है ना यार अभिषेक के कंपैरिजन में, आप रीजन समझो नहीं, मेरे बट को। कंजम्पशन मेरे जोन के हिसाब से भी देखो, अगर अपन को कुछ अभी अचानक से सीखना है तो यूट्यूब वुड बी इन अ हम्म, बेटर पोजीशन। एप्पल भाई मूवीज में इतनी मेरा अच्छी मूवीज मेरा नहीं है। मेरा काम वो है ना, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जाना है, तो मेरे लिए स्पीड फास्ट होनी चाहिए। हमारा तो काम ही वो है, हम्म। तो फॉर सब मी हम लोग तो आई अपने नीड काम के एप्पल। हिसाब से देख रहे हैं। यार देखो, हाँ। अगर स्ट्रेस में होते हैं ना तो गाना सुनने के लिए यूट्यूब काम आता है, और आर्ट ऑफ लिविंग का 7 डे चैलेंज भी यूट्यूब पे चल रहा यस। आई हैव देखो, नथिंग अगेंस्ट यूट्यूब भाई, आई डोंट आई टेल माइंड। यू वन है। थिंग। इवन अभी आई हैव तक ना, नथिंग अगेंस्ट अभी एप्पल। तक मैं यूट्यूब में जा रही थी, अभी तक आई वाज गोइंग टू यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब में हमारा भी है। बट सौरभ ने जब बोला कि मेरा डिवाइस जब स्ट्रांग होगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं एप्पल की तरफ चली गई। ओह माय गॉड, देवलीना का वोट जा रहा है यहाँ से, चलो एप्पल को दे दो तो यार। हर आई जगह वैसे भी थिंक स्क्रीन में 4 जगह पर एप्पल दिख रहा है। तो आई थिंक सौरभ ने जो हाँ ये तो है। जस्टिफिकेशन दिया, तो दैट इज चलो, लाइक वो मैं अवॉइड नहीं कर पाई, तो हमारे स्टीव जॉब्स। विनर है एप्पल। चल, नाइस। यस। ओके, सो नाउ वी आर आउट ऑफ दिस। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, पानी पियेंगे। अच्छा, ये बढ़िया, ये अच्छा सेक्शन। सो हमारे बॉटल्स कोई खाना खाना सोने का सेक्शन नहीं है, सो जाओ। आफ्टर दिस सोएंगे। तो रूल्स बहुत ही सिंपल है इस गेम्स के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। नेवर हैव आई एवर, आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर डन दिस और दैट, अगर आपने वो किया है तो आप यस नहीं बोलोगे, आप जस्ट एक छोटा सा सिप पानी पी लोगे, तो वी विल गेट टू नो कि आपने किया है। एंड इसमें बहुत सारे गिल्ट बाहर निकलते हैं एंड यार एम्बैरेसमेंट। ये अचानक से देवलीना का शो की जगह करण जौहर का शो बनते जा रहा है हाँ। यार। पानी विद देवलीना। पानी विद या देवलीना, एंड ये बहुत ही एंटरटेनिंग सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर ट्राइड अ फूड आई हेटेड जस्ट टू बी पोलाइट। हम सब ने किया ये। Never have I ever closed a deal using a sales speech that sounded like it was written by a motivational speaker on steroids. मैंने भी किया। Never have I ever accidentally called someone the wrong name. इसी एपिसोड में हम दोनों ने कर लिया है। अभी किया। ये जानबूझ के पूछो, जानबूझ के कराए कि नहीं, तब और पियेंगे। तब 2 ग्लास। Never have I ever walked into a wrong bathroom. ये मैंने नहीं किया। नहीं। अभिषेक। Never have I ever forgotten someone's name right after they introduce themselves. ये तो किया है। अभी हमें वॉशरूम ब्रेक चाहिए राइट आफ्टर दिस। इतना सब किया हमने। नेवर हैव आई एवर हैड अ पब्लिक स्पीकिंग डिजास्टर। मेरा, अरे अभिषेक का भी। नेवर हैव आई एवर हैड टू एक्सप्लेन टू माय ग्रैंडमा why I am investing in something called cryptocurrency। कहो My यहाँ पे grandma is never interested in all those things. कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। वही। मैं अपने बारे में लोग बताता नहीं हूँ किसी को, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। नेवर हैव आई एवर gone on a vacation and not posted a single video। ये मैंने कभी नहीं किया। So basically वेकेशन पे गए और डाला है फोटो या नहीं डाला है? नहीं डाला है आपने। नहीं डाला है। आप गए हो। हम्म, अच्छा। मैंने पी लिया अपना पानी। नहीं, मैंने नहीं डाला, ऐसा भी है कुछ वेकेशन। आज के जमाने में मैं और सौरभ तो संत निकले हैं, बट ठीक है। वही। never have I ever pretended to be someone else online। Is that meaning a fake ID or is it like we're मतलब trying to pretend? मैं देवलीना हूँ लेकिन मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं कोई और हूँ। आई एम लाइक यूजिंग सम अदर नेम और समथिंग लाइक दैट। राइट, मेरे को ध्यान है, हमने ओमेगल पे करा था तो। नेवर हैव आई एवर फॉलन asleep ड्यूरिंग अ जूम मीटिंग। नहीं। नहीं, गुड। चलो, मेरी अच्छी टीम में बात सबने है। पिया। yesterday we were doing a mock। ओह। ओके।
Never have I ever blamed someone else for my mistake at work. मुझे नहीं. याद नहीं है. मुझे भी. हाँ, never have I ever pretended to be on call to avoid talking to someone. Introverts in the room? I'm still an introvert. लगता नहीं है देख के. आई फील इट Never. इज समथिंग जो कि हम चूज करते हैं कि कहाँ पे इंट्रोवर्ट होना है, कहाँ पे नहीं होना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. वहां पे हम फोन पे बात कर लेते हैं किसी और से. Never have I ever worn a pajamas during work call. किया तो है. हमेशा. हमेशा. सारे सेल्स वेबिनार ही ऐसे करें क्योंकि ऊपर का ही दिखता है. अभी थोड़ा खड़े होके देखना मैं पड़ेगा खुद सुन. मैं खुद क्या किस पे बैठ मैं खुद शॉर्ट्स पे बैठा हूँ अभी. हाँ, वही सेम स्टोरी. I think we resonate together. Never The, have I the best ever. part was I was हाँ having a podcast shoot with somebody. रात तक शूट किया, 1:30 बजे तक होटल में आए थे, हाँ एंड हाँ. सडनली उनका रिंग लाइट खराब हो गया. सो दे वर लाइक, सर फिर से पूरा शूट करना पड़ेगा. मैंने बोला एक रिंग लाइट तो गई है, इस पे पूरा क्यों करना है? बोले सर करना पड़ेगा सुबह इन द मॉर्निंग. आई एम तो नॉर्मल यूजुअल गया हूँ, वो बंदे ने पूरा सूट वूट पहना है एंड नीचे शॉर्ट्स पहना है, एंड उस पे ओह. शूटिंग हुई है हमारी. लिटरली वो सामने. या वो आज भी Oh लोग my God. सोचते हैं यार क्या बढ़िया सूट लग रहा है बंदे का. अरे भाई मेरे साथ हुआ था, मैं एक बार वेबिनार कर रहा था. अब वेबिनार सारे ऐसे ही करते हैं, सूट पहनते हैं, ऊपर ब्लेजर डाल दिया, करेक्ट करेक्ट नीचे शॉर्ट्स करेक्ट. पहन के बैठे हैं. तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं उसके ठीक बाद ना मार्केट में निकल गया. रोड पे चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग ना देख के स्माइल कर रहे हैं. मैंने कहा यार ये Oh इतने सारे लोग बार बार क्यों देख रहे हैं. अरे फिर यार. रियलाइज हुआ ओ ऊपर ब्लेजर my है, नीचे goodness. शॉर्ट्स पहन के. रणवीर सिंह को कंपटीशन मिल This is गया. crazy. मुझे वो शाहरुख खान याद आ गया. कुछ कुछ होता है. हाँ. So we are out of this. So the theme is like the idea was to stay hydrated because that is good for your health. To keep yourself hydrated, बहुत सारा पानी पीजिए and keep yourself healthy. तो ये just एक बहाना था वहां तक पहुंचने का. वाह. Okay. इंटरेस्टिंग. यार यार मेरे अंदर ना बहुत जोर से ओमेगल वाली स्टोरी भी आ रही है, मैं बता ही देता हूँ. हाँ जी बता हाँ ही दो क्योंकि यार. जोर से आई. तो क्योंकि वो लोगों को मजा आएगा. तो बेसिकली ओमेगल एक प्लेटफॉर्म है विच इज मोस्टली फॉर एडल्ट कॉन्वर्सेशंस, इट राइट. वॉज अगर अ इट प्लेटफॉर्म, अब बंद हो गया. ओके एनीवेज सो हमारा भी कुछ ऐसा ही हुआ था. सो हमें ये था कि यार यहाँ पे लोग बहुत हैं, और जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है. तो हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट नया नया अप्रूव हुआ था. तो हमने क्या करा, वहाँ पे एक फीमेल टाइप प्रोफाइल बनाई और वहाँ पे बोला इफ यू वांट टू सी आवर यू नो पिक्चर्स तो क्लिक ऑन दिस लिंक. और उस लिंक पे हमने गूगल एडसेंस बहुत सारे घुसा दिए. तो टू डेज $95. So imagine this, 2 days $95. Oh एंड फिर my somehow we God. felt यार नहीं यार, मॉरल वाली चीज आ गई, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, फिर हमने करना बंद कर दिया. Last two, three questions. Okay. Okay. तो क्रिएटर्स टूल किट इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है. व्हाट आर द एसेंशियल एप्स, टूल्स और टेक हैक्स आप सजेस्ट करना चाहिए चाहेंगे किसी भी न्यू बी को, अगर उसको ट्रैवल करना है तो क्या किट होना चाहिए उसके पास, या फिर क्या एप्स होने चाहिए कुछ एडिशन. ओके अभिषेक. मेरे को लगा बोलना शुरू करेंगे तो पॉज लेके मुझ पे डाल दिया. ओके सो सिंस मैंने बताया मैं सब कुछ मोबाइल पे होता है, तो यू हैव वेरियस एडिटिंग एप्स दीस डेज. कैपकट है. सो इफ यू आर समबडी हु इज इनटू मोर ऑफ ग्लैमरस थिंग्स, तो कैपकट टाइप का भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज InShot इज आल्सो गुड. पावर डायरेक्टर्स देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्स फॉर एडिटिंग. व्हाट आई फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिएटर इज ऑब्वियसली द वॉइस. More than the camera, what I've realized is the voice quality. So उस पे आप जितना हो सके improve करने की कोशिश करो. Starting में you can start with a Boya mic also, which would cost you as low as 500 rupees also. ठीक है, you can start off with that. Eventually आप upgrade कर सकते हो to what was this 24,000 25,000 के दोनों आते हैं. I forgot. रोड. Rode रोड. correct. Rode. प्रॉपर माइक. Rode Yep. पे आप जा सकते हो. ये वाला.
हाँ एग्जैक्टली Yep. सो यू कैन गो विद दिस थिंग देन आजकल DJI चल रहा है दैट वुड कॉस्ट यू लाइक द गुड वन वुड कॉस्ट 30,000 प्लस के आसपास आ जाएगा 30,000 के आसपास आ जाएगा दैट इज वन देन इफ यू योर प्रोडक्शन क्वालिटी एक्चुअली improves then you should start investing into I forgot those were also Rode के mics भी अच्छे हैं like I guess Saurabh you are using Rode का ना अभी this mic हाँ मतलब yeah ये वाला रोड का है जो कैमरे से कनेक्ट करते हैं, and लेकिन which फोन के which लिए वी which हैव टेकन नहीं and which stationary mic we are using ये podcasting mic किसका है ये भी Rode ही लग रहा ये है मेरे वाला को हाँ ये वाला रोड है, करेक्ट करेक्ट। Rode ही This है is करेक्ट also है a ना road. हाँ हाँ Yeah. लेकिन this is मैक्सिमम Rode कंटेंट इससे नहीं रिकॉर्ड होता है, ना ही इससे रिकॉर्ड होता है। मैक्सिमम कंटेंट जो फोन के वायरलेस वाले माइक आते हैं ना, वो हाँ उसमें बोया का आता है, ग्रेनारो का आता है और रोड का भी आता है, हाँ तो वो all three are मैक्सिमम good कंटेंट all हमारा उसी three से रिकॉर्ड होता है या। all three are good other than that mics की अगर मैं बात करूं तो I forgot the name the more so जब आप पहली बार पॉडकास्टिंग टाइप में जा रहे हो तो you can go with Blue Yeti starting के लिए अगर आप थोड़ा सा पॉडकास्टिंग या गेमिंग कर रहे हो it would cost between 8 to 10,000 and फिर जब आप एडवांस जाते हो तो there is I forgot the name it is a 45-50,000 का mic है which most of the podcasters these days are trying to use I forgot the name of the brand again while you're traveling one is editing this thing second is the most important thing is अगर iPhone हो तो थोड़ा space का management कर लेना because that's the most important thing वो आपको थोड़ा challenge दे सकता है initial creators को तो try to manage that the third thing which you would require while traveling is if you are not able to carry lights with you डोंट वरी अगर आप एक्सटर्नल शूट्स कर रहे हैं तो डू इट इन द डे टाइम अगर इंटरनल कर रहे हैं तो टेक अ रूम विथ मल्टीपल लाइट्स ट्यूब लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी आप यूज कर सकते हैं वॉइस आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर क्रिएटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज कि अगर पिक्चर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो ना लेकिन आपकी आवाज अगर बहुत खराब जा रही है तो यूजुअली पीपल ड्रॉप आउट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ आल्सो इन द वीडियोज वेयर माय वॉइस क्लैरिटी इज बेटर even if the content is not the best one it will still perform better in contrast to a place where the content is good but the voice is really very bad echo बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये है these days I have discovered a tool I'm just trying to experiment with it it's a Adobe का AI tool है which is actually Okay. helping out to clean your vocals on this thing I'm trying to experiment थोड़ा सा robotic कभी कभी बना देता है वो but I think going ahead AI ऐसी चीजें लाने वाला है already ला ही रहा है tools ला रहा है which can actually help you out for thumbnail you guys might laugh but I'm still a Canva user but मैं pro use करता हूँ and very handy for me मैं ऐसे बैठे बैठे बना देता हूँ so even if I'm let's say I'm traveling I'm in some ashram हाँ ये बन गया ये डाल दो इस चीज पे so that's a chilled out way with which you can build up this thing but I think it's better to have better designers, graphic designers. But starting में कुछ नहीं है तो आप free tools काफी available हैं आज के time पे. You can use those things and और tool kit में मेरे हिसाब से इतना ही अगर starting creators के पास हो Start तो कर रहे हैं तो. ये it's good enough. Yeah. I think to start with, it's a good idea to know at least the basic Canva and AI is already there Yes. for content and all. So a lot of things you Yes. can. And मेरे एक do. सजेशन रहेगा for the starters also मतलब ये मेरे को बड़ा अजीब दिखता है honestly मैंने कंटेंट के लिए कभी भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया है आई वुडंट से मत यूज करो डू इट फॉर रिसर्च बट प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट वो समझ में आ जाता है यार वो क्रिएटर जब Yeah. बोलता है ना कि भाई ये तू तो चैट जीपीटी से पूरा इनफैक्ट लिंक्डइन पे मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ आजकल कमेंट के रिप्लाईज चैट जीपीटी से उठा उठा के डाले Yes, जा रहे yes, हैं yes. so one can easily make out and I'm pretty sure sooner or later these platforms would set up an algo which will clearly catch कि अच्छा बेटा तूने ये यूज किया हुआ है तो तेरे को एंगेजमेंट ज्यादा नहीं देंगे so even if Right. you're using it for research purpose use it for research purpose but मेरे को लगता है हमेशा अपना एक टेस्ट रखो आप एक अपना स्टाइल रखो डोंट and I've tried replicating others also in the starting time it doesn't work out आपकी अपनी एक स्टाइल होगी what Saurabh can do I can't do what Rahul can do I can't do what probably I can do these people may not be in a position to do in that style तो ये सबका अपना एक स्टाइल है of communicating सबका एक स्टाइल है of delivering कॉपी मत करो अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल बनाओ I have seen a women from a rural area जो स्पोकन इंग्लिश सिखा रही है अभी काफी एक्सक्लूसिवली मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन हर चैनल्स एंड वीडियोस एंड वो उसमें वो एक एक्सेंट में दिख जाता है कि एक विलेज वाला टच है बट वर्किंग ब्यूटिफुली अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं जब तक प्रिंस चार्ल्स जैसे नहीं बोलूं तब तक मैं नहीं चलूंगी स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखाती हूँ दैट्स ऑल गॉन आउट ऑफ द वर्ड्स लाइकवाइज हमारे फाइनेंस में भी
प्रांजल इज देयर. प्रांजल, आप लास्ट 7-8 साल के वीडियोस देखोगे, वो हमेशा बेसिक से सिखाते हैं. बट दैट इज बिकॉज एवरी ईयर 2% नया ऑडियंस आता है, एंड ही इज लाइक मैं उन्हीं को केटर कर रहा हूँ. अंकुर वारिकू is Ankur also doing Warikoo similar is, kind of thing. yeah. Last year you will see six ways to lose weight. This year you will see 5 ways to make 4-pack abs. Next year you would see 3 ways to lose 30 pounds. Kind of same thing, new packaging for the retaining audience. He doesn't want to cater into advanced. So people will drop. पुराने वाले लोग drop हो जाएंगे और आपको feed में भी नहीं आएगा, but they're going to consume. Likewise, if you see, I think Saurabh also knows because उनके event में भी आए हमारे label law advisors. So they have very specific, authentic information with high production quality and everything around scams and legal affairs. So वो उसको एक बहुत प्यारे तरीके से उसको करेंगे. And they, just for this information, of all the most of the creators I've found, without judging anybody, I think Label Advisor is one of the most ethical people in the industry when it comes to their ethical standards. If it is a no, it is a no. If it is a yes, if it is a yes. If they don't want to promote a certain brand, they wouldn't. Even if the brand value is very high, if it is not coinciding with the morals, it's they are not going to do this thing. So I would say in terms of ethical standards, they stand really high in terms of this thing. Wow. Right. Good. So I think it's a very good point to mention, Abhishek, जो आपने बताया कि you should have your own style, आपका अपना एक uniqueness होता है. For that people love you. So most of the time we try to, replicate somebody else's accent or style, but वो काम नहीं करता. वो मैंने भी experience किया है. And I think which is very, very solid tip for anybody who is coming into the content creation to just identify your own, uniqueness and just be who you are. Right. Yes, Right. Saurabh, for you. I feel more than the work नहीं करता है, इससे ज्यादा important चीज है कि यार I want to work with people, I want to consume people, या in any ways जो कि मेरे को genuine लगे. अगर मेरे को वो सामने वाला बंदा जेन्युइन नहीं लग रहा है तो फिर मैं उसके साथ ना तो काम करना चाहूंगा, ना ही मैं उसके साथ उसको कंज्यूम करना चाहूंगा. मतलब मैं फॉरगेट अबाउट काम करना चाहूंगा, मैं उसको इंटरनेट पे भी कंज्यूम नहीं करना चाहूंगा. तो आपका जेन्युइननेस आई गेस मैटर्स मोर देन द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स आपके बातों में वैल्यू. सो वी टेल द सेम थिंग टू आवर मेंटीज आल्सो, कस्टमर्स आल्सो, कि यार जैसे कभी कभार वो पूछते हैं कि क्या सर मैं आप ही का कंटेंट उठा के अपने वीडियोस बना लूं. मैंने कहा हाँ बना लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें अपना टच तो डालो, अपना एक्सपीरियंस तो डालो. जैसे मैंने आपके साथ गूगल पे की स्टोरी शेयर करी कि मैंने एड्स चला के मतलब क्योंकि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो वाली चीज अब कोई और नहीं बता सकता है. वो चीज तो मैं ही बताऊंगा ना सामने वाले को. तो आप जितना ज्यादा, नाउ इट डज नॉट मैटर कि आप किसी चीज में आपने कितना अच्छा करा या किसी के कंपैरिजन में कितना अच्छा खराब करा, लेकिन आपके साथ क्या हुआ उस चीज को सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं. तो फॉर मी लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गया या एड्स रिकॉर्डिंग हो गया, जो भी ये चीज़ हो गई, सो लाइक फोन डज द जॉब मैक्सिमम टाइम्स. और आपका जो मोबाइल वाला वो वायरलेस माइक होता है ना, तो वो हमेशा साथ में हम लोग रखते हैं, हमारे बैग के अंदर रहता है. तो अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड करने का फील आया तो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. दैट वेज वी रिकॉर्ड. बाकी अदर देन दैट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कुछ और मैटर करता है. शायद एडिटिंग, कैपकट हमने अभी रिसेंटली सुना था, किसने बताया था, तो अभी उस पर स्विच करना स्टार्ट करा है क्योंकि टीम ज़्यादा करती है. तो वो एडोबी प्रीमियर प्रो दे वर यूजिंग, लेकिन दे वर टेलिंग कि वो काफ़ी स्लो है. समबडी सजेस्टेड कि कैपकट थोड़ा ज़्यादा इजी है तो इस पे करना स्टार्ट करो. सो वी आर स्विचिंग ओवर देयर. सिमिलरली फॉर थंबनेल्स वो एडोबी का शायद फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, दोनों में से किसी एक पे दे मेक इट. I guess that's it. बाकी तो यार in our case, okay, so I will tell you this. In our case what works is, जैसे आपके वीडियोस में होता है ना, क्रिएटर वाले वीडियोस में होता है कि you will see कि कोई वीडियो के बहुत ज़्यादा वायरल व्यूज आएंगे, किसी के नहीं आएंगे. एंड बहुत सारे फैक्टर्स उसमें मैटर करते हैं, जिसमें कि हुक भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि मैटर करता है. So what we also do is sometimes when we record ads, okay, so what we also do is, अब जैसे मेरे को एक लॉजिक समझ में आ गया कि लेट्स सपोज मेरा एक मिनट का ऐड है जिसमें कि मेरे को पता है कि बेस्ड ऑन द हुक बंदा ऐड देखेगा या नहीं देखेगा पूरा, उसे हुक पसंद आया कि नहीं आया. सो व्हाट वी ऑल्सो डू इज कि मैंने 1 मिनट का ऐड बनाया, लेकिन जो उसके पहले 5 सेकंड है उसके मैंने 10 वेरिएशन बना लिए. तो रिमेनिंग 55 सेकंड सेम है, लेकिन पहले 5 सेकंड के 10 वेरिएशन है. तो फिर मैं वो 10 के 10 ऐड फेसबुक पे फेंकूंगा, और जो ऐड फिर मेरे को बेस्ट आरओआई दे रहा है तो उससे फिर आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
तो Okay. वो एक लेवरेज मेरे को मिल जाता है एड्स के ऊपर, क्योंकि आई कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट। वीडियो में ये है कि चला गया। तो I've met Very a smart. lot of digital advertisers, but I must admit Saurabh is smart. जुगाड़ू जो Very, word very. बोलते हैं ना, है ये बंदा. So that's a good thing. Good thing. Yeah. Yes, it's very, very smart. Like A/B testing का A to Z testing हो गया यहाँ पे. Yeah. Right. Cool. So that's really amazing. And Saurav and Abhishek, before we wind up, आपके side से, see, for creators or for entrepreneurs, mindset is everything. So would you like to add something for the budding entrepreneurs and for the budding creators? Like what kind of mindset they should be? What is your advice for them? Let's Okay, start with so Saurabh. done. So for me, I would say कि यार एक जो लाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी है, दैट इज कि यूनिवर्स फॉल्स इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट। इट इज लाइक दैट फॉर मी। मतलब आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी है या कोई भी जर्नी स्टार्ट करी है, लेट्स सपोज आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है, आपने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करी है। इफ यू आर स्टबर्न इनफ, इफ यू आर समबडी जो कि फॉर मी नेवर गिविंग अप इज समथिंग दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि रास्ते आप अपने लिए खुद से निकाल लोगे। किसी का रास्ता कुछ और होगा, किसी और का रास्ता कुछ और होगा। आपने कुछ ऐसी चीज करके सक्सेस हासिल करोगे जो कि सामने वाला बंदा सोच भी नहीं रहा है। अभी यहाँ पे मैंने पता नहीं कितने सारे वो डिस्कशंस करे कि अभिषेक ऐसा करता था, देवलीना ऐसा करती थी, मैं ये करता, सबके रास्ते अलग है। लेकिन द पॉइंट इज कि एक जगह से स्टार्ट करा, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आए, चैलेंजेस के लेके हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करे, लेकिन एक बार चैलेंजेस डिस्कस करने स्टार्ट करें तो वो एक अलग 4 घंटे का पॉडकास्ट होगा, लेकिन मे बी इवन मोर। लेकिन करते 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 वी जस्ट फिगर आउट अ वे। आई मीन थिंक अबाउट द फैक्ट, जैसे अभिषेक ने वो बताया, फॉलो अनफॉलो अभिषेक। आई मीन दैट वुड हैव That's a बीन, जब वो campaign. पहली बार हुआ होगा तो पहले दिमाग में आई यार ये क्या चल क्या रहा है, हुआ होगा सारी चीजें। लेकिन आपको हमेशा लगेगा, पता है, इन एवरी स्टेज ऑफ योर जर्नी आपको हमेशा लगेगा कि शायद ये चैलेंज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, और पता नहीं अब इसके बाद कुछ होगा कि नहीं होगा। एंड देन आप करोगे चीजें, यू विल फिगर आउट अ वे टू ओवरकम दैट, एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम समथिंग एल्स विल कम। बट फॉर मी, माई लाइफ मैटर्स टू मी इन अ वे कि यार मेरे को बोरिंग नहीं चाहिए। आई लाइव माई लाइफ, आई वॉन्ट इट इन अ वे कि भाई चैलेंजेस आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, बट द लाइफ हैज टू बी वर्थ लिविंग। एंड इफ आई इट इज कमिंग अप विद द चैलेंजेस, देन इट इज ऑल्सो कमिंग अप विद ओन सेट ऑफ रिवॉर्ड्स। तो वो Yes. रिवॉर्ड्स के लिए दैट पुशेस मी ऑन अ डेली बेसिस। तो गिविंग अप इज नेवर एन ऑप्शन। हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है दुनिया की, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जस्ट दैट यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन टू दैट। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एक बार किसी ने मेरे से Awesome. पूछा था कि सर ये कितना इजी है, टफ है। आई गेव द रिप्लाई कि भाई कोई भी चीज ना तो इजी है ना ही टफ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड। आप अगर उस चीज की इनफ प्रैक्टिस कर लोगे, इट विल बिकम योर सेकंड नेचर, वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट इट इज। वाओ। तो ये है चूज बेटर प्रॉब्लम्स। लाइक प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, बट व्हाट यू आर चूजिंग इज लाइक एवरी टाइम यू आर चूजिंग द बेटर प्रॉब्लम्स। लाइक अभी कुछ और है, अपग्रेडेड वन है, राइट? राइट। एंड आउट प्रैक्टिस गुड Correct. थिंग्स। आउट प्रैक्टिस एंड बहुत फोकस। एंड आप यहाँ पे अपना टाइम एंड अटेंशन डाल रहे हो। अभी मेरी कल किसी से फोन पे बात हो रही थी, एंड शी वाज आस्किंग मी रिगार्डिंग समबडी एल्स जो कि मेरे काफी ज्यादा क्लोज है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यार वहाँ पे, वो कोई क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है। उसने कहा तेरे इतने क्लोज है, तुझे क्यों नहीं पता। मैंने कहा उसने मेरे को बताया वहाँ पे जा रहे, मेरे को उसमें क्या लेना देना। तो एंड शी वाज लाइक कि नहीं नहीं पता होना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे माइंड को जितनी कम चीजें पता है, सो फॉर मी ओके, आई पोस्ट कंटेंट Wow. एज वेल, लेकिन मेरा Mm. इंस्टाग्राम डेली का कंजम्पशन इज हार्डली 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। और यूट्यूब पे अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो, मतलब माई सोशल मीडिया डेली टाइम 15 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा until and unless I'm going on YouTube to watch something very specific. तो आप देख रहे हो, मतलब the point is we use social media to make money out of that, not to be a यस। consumer over there. But what are you using? What are you consuming for your learning? Like, are you doing a day-to-day learning also somewhere? And if yes, what are you consuming then in that case? Sometimes it is more of a situational learning. जैसे अभी let's suppose AI का hype आया, hype क्या ठीक आया, है. AI is a big thing, right? So now I हम्म. will go on YouTube and I will search for AI, and I will search for random stuff. Let's say how to use AI for sales team. ओके। Okay. कि मेरा यूज केस क्या है, उसमें मैं AI को कैसे यूज करूँ। हाउ टू यूज AI फॉर हायरिंग। तो व्हाट इज माय Okay. यूज केस, उसमें मेरे को AI को यूज करना है। तो वहां से आई एम गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन And आई नो व्हेन आई एम गोइंग ऑन यूट्यूब कि मेरे को चाहिए क्या।
Okay, and when you are preparing for your own webinars, obviously you have to keep on upgrading yourself also. So is it something which you are upgrading through YouTube, or you do a lot of reading, or it is more of experiential thing, whatever you are doing, hit and trial, and based on that you are deriving your learnings? इट्स मोर ऑफ अ एक्सपीरियंशियल थिंग, क्योंकि वेबिनार्स इज, लेट्स सपोज अगर वेबिनार होते हैं तो इट्स 1 hour ऑफ कंटेंट एंड 3 hours ऑफ सेलिंग एंड पिचिंग. तो 1 hour ऑफ Okay. कंटेंट देने के लिए तो आपके पास ऑलरेडी इतना इनफ कंटेंट है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी टीचिंग समबडी. सो सो द क्विक टिप ओवर हियर इज डोंट गो वेरी एडवांस्ड व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग. कीप इट बेयर मिनिमम, बेसिक मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वो चीजें भी नहीं आती है. तो जितना ज्यादा आप उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हो, वहां पे आपके वेबिनार्स फेल होने स्टार्ट हो जाते हैं. आप जितना ज्यादा उनको बेसिक लेवल पे लेके आके चीजों को सिखाते हो, दैट मेक्स मोर ऑफ अ गुड सेल्स वेबिनार. But then you also, just last one thing, you mentioned that you consume less of movies, like occasionally you do that. You are not active on सीरीज series. Okay, सीरीज. series. Movies also, I'm pretty sure not watching one movie a day. So let's keep या it apart from the weekends. You're not also consuming a lot of social media. So should I inherently assume that throughout the day you're busy with your professional work, or there's some, oh, wow. मेरे को 3 चीजें समझ में आती है दैट मेक्स मी हैप्पी. इधर इधर माय वर्क और वाचिंग Okay. मूवीज. अगर मेरे को मूवी पसंद है तो मैं फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे, सेकेंड डे में जाऊंगा ही जाऊंगा. Okay. या फिर इट इज प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल. सो एवरी Yeah. वीक वी गो आउट टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. लाइक दीज आर द 3 थिंग्स. So that's a good learning for all of us also. Like Yes. what I call as, so this is my word which I use for myself, but now I'm pretty sure I can use for Saurav also. We are not workaholic, we are workaholics, because we are enjoying the work so much that the या work doesn't sound like a work. And I guess Saurav करेक्ट. is a bigger workaholic than me, because I anyways get time to watch series and movies also. So more than him. So, but yeah, but that's a good thing. He's not going to get exhausted with his work even in the next couple of years. A lot of people get burnt out क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे हैं, but they're not enjoying their work. And I guess True. over here Saurav is enjoying that, and that is what makes the difference. Wow. Yeah, and या that's a मेरे को very ना एक वो important चीज. factor that once you enjoy, what is the driving force? अगर आपका driving force है पैसे कमाना है और उसके लिए काम करना पड़ता है, then it's very different. Then you just love your work and your driving force is that passion and love. It's very, very different. I feel ट्रू how you ट्रू. resonate एक with वो that. चीज आपको याद है, अब जब हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले में ही थे तो उन्होंने हमसे आंख बंद करवाई थी और 3 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने हाथ खड़ा करवाया था. बाद में उन्होंने जवाब दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे बैठे कितने लोगों को सुसाइडल फीलिंग्स आई हैं. Hmm. एंड आपको याद होगा, तो हम सबकी आंखें बंद थी, तो किसने देखा नहीं था कि किसने हाथ खड़े करे हैं. प्रॉब्ली अभिषेक ने खोली होगी आंखें. लेकिन बाद में विराट ने ये बोला था कि Hmm. तकरीबन यहाँ पे बैठे 40% लोगों ने हमने हाथ सुसाइडल ऊंचा टेंडेंसी किया के नाम पे हाथ ऊंचा करा है. मेरे लिए वो नंबर बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि वहां पे इंडिया के टॉप क्रिएटर इज सम ऑफ द बेस्ट, One of the most मोस्ट, successful. या सक्सेसफुल पीपल इन टर्म्स ऑफ फेम एज वेल एज मनी. Yeah. उसमें 40% लोग अगर वो उठा रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं सुसाइडल वाली चीज पे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आंसर ये होगा. तो जैसे अभिषेक अभी ये भी कह रहे थे ना कि मोर टाइम टू वॉच सीरीज और वट एवर. आई फील वट एवर मेक्स यू हैप्पी, भाई वो करो यार. डोंट correct, डोंट correct. True. कंपेयर विद एनीबडी कि अच्छा Perfect. ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं. नहीं 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 भाई, लोग इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी परेशान है. इफ समथिंग That's the एल्स इज reason मेकिंग यू I've not. हैप्पी. That's the reason I've not upgraded my systems and cameras. मैंने बोला compare Because ही नहीं you're करेगा, छोड़ो. happy. Yeah. This is also what happened when I was at Isha. So everywhere I take something. So there's Sadhguru while he was having a one-on-one. So everything was going. I just picked up 2 things. One, he said, because the person sitting next to me was a six-pack abs wala and good body. So one which Sadhguru mentioned was, just because you have a bulging body and a six-pack ab doesn't mean you have a fit body. तो ये मैं पूरे टूर में उसको रिपीट करते हुए आया साइड वाले को. And the second one was, something around purpose of life. So at the end, the purpose of life is to have joy. A lot of people, they get so engrossed in the race of making money, fame, and all those things that they eventually forget that ultimately तो भाई joy है जिसके लिए तुम ये कर रहे हो. So joy is one thing which you have to. And from art of living, there was one more thing which anyways was there in my mind, which Virat also mentioned. And then there are a couple of lessons. This would again become a bigger podcast. So just one lesson which Virat said, he
यार जब वो तुमको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, हेटर जो है लाइक यू आस्क अबाउट ट्रोलर, और उसके बारे में सोच रहे हो, वो बंदा बढ़िया वीकेंड एंजॉय कर रहा है कहीं एसी पे बैठ के, वो बढ़िया जूस वूस पी रहा है, और तुम अपना दिमाग पूरा दिन भर खराब कर रहे हो. सो व्हाई टू डू True, दैट, इट शुडंट मैटर. सो देयर true. वर couple of lessons over here. And I believe, Devlina, because you asked this question, Saurabh has anyway summed it up really well. I'll just add one thing, which I often say in a lot of my interviews also, that is, patience is a commodity which is rare in supply these days. The moment you start embracing कि यार किसी भी proper result के लिए patience चाहिए रहता है, a lot of people, they often and never try to compare yourself with outliers. A lot of people are like, मैं अगला वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन पा रहा हूँ. Forget about this thing. He has given 60 years of compounding. 60 years आपने अभी शुरू किया हुआ है. Then you're comparing, यार मार्क जुकरबर्ग तो 28 29 पे मल्टी मिलियनर बिलियनर बन गए थे. Forget, you're forgetting about the demographic dividends. You're forgetting about the location, the situations which were prevailing at that point of time. So outliers के साथ compare करना छोड़ो, अपनी खुद की एक जर्नी बनाना शुरू करना है. That is applicable for all the creators or any aspiring professional out there. And patience रखना पड़ेगा. रिजल्ट कब आएगा, इफ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस एंड सौरभ वुड आल्सो एग्री. आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलना है. अब ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, बट इट डिपेंड्स. एफर्ट किसी को हो सकता है, अगर नसीब बिल्कुल, अगर आप लोग नसीब भी बोलते हो तो डोंट फॉरगेट दैट केएफसी वाले ने भी आफ्टर 60 उन्होंने चालू किया था. सौरभ के चेहरे पे मुस्कान आ गई केएफसी सुनते ही. एंड मैकडोनल्ड्स वाले ने एंड भी. मैकडोनल्ड्स वाले रे क्रॉक Right. ने भी, इट वाज पोस्ट 50. Ray Kroc. सो रे Yeah. क्रॉक, या पोस्ट 50. सो आई गेस वही है, पेशेंस आप रखो, एफर्ट्स डालो, बट पेशेंस के साथ थोड़ी मॉनिटरिंग भी करते रहो, बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप बस मेहनत मजदूरी कर रहे हो बट भूल यू आर गए नॉट हो. एक्चुअली चेकिंग, हाँ, चेकिंग द रिजल्ट्स आल्सो. समटाइम्स यू नीड टू पिवट आल्सो. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो आई Correct. आई गेस people even like older people like Chetan Bhagat also, they also pivoted their career. He was into investment banking. He realized his calling was writing. He went into writing, and then he gained popularity, fame, and happiness. So I guess it's never too late. आप कभी भी चालू करो. And मेरी लाइफ का बस एक फाइनल एक लेसन है. Creators, because you specifically mentioned Devlina, creators के part में you look into Ranveer, you look into any bigger creators, you would find they have staunch set of admirers as well as staunch set of haters. Always remember, this is my concept which I told to a few people who were getting depressed while they were receiving trolling or hatred. I said कि हमेशा याद रखो, तुम्हारे 90% चाहने वाले होंगे, 5 to 10% हमेशा तुम्हारे से विपरीत वाले लोग होंगे. Wow. So when you had 100 followers, you would see only 5 hate comments, so it was very easy for you to digest. Now thousands, so the ratio will keep on changing. So आप जब 10 मिलियन पे आ जाओगे तो आपको देख रहा है, ओ माय गॉड मेरे 50,000 हेटर्स हैं. नहीं, आप परसेंटेज वाइज देखो, एंड इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं. दीज आर मोस्टली पीपल हु आर इनसिक्योर एंड एनोनिमस आईडी के पीछे बैठ के दे जस्ट ट्राई टू डिफेम, जस्ट बिकॉज back of the mind they wanted to be at your place, they couldn't reach that place, and that's why Correct. they trying to pull you down. तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, मतलब ठीक है, गॉड ब्लेस यू करके आगे बढ़ो. एंड सौरभ ने एक बहुत प्यारी बात कही कि यार अपने काम पे फोकस करो यार, दुनिया जो कर रही करे, अपना अपना देखो, अपनी खुशी देखो, अपना काम करो, रेस्ट एवरीथिंग कम्स इन प्लेस. Wow. So I feel that's something like totally wholesome with the, the way you both have concluded this particular conversation, Abhishek and Saurav, because often when you do something with your calling, आपको लगता है आपकी calling है, but at the same time there are a lot of self doubt. आपको लगता है कि पता नहीं ये calling है भी कि नहीं है. So then, it's very important to validate with somebody like you both, because अगर आप भी उस चीज से गुजर चुके हैं तो definitely this is normal. Let me follow my own gut feeling, let me put all my hard work, let me do what is needed to do that particular thing, and जो भी जरूरत है मुझे उसको सक्सेस कराने के लिए I will put my all my effort. So that commitment is very very important. And the way the whole conversation आज का जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड जहाँ हम कंप्लीट कर रहे, इट्स टोटली माइंड ब्लोइंग, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट इज गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग. मुझे पता था ये होगा, बट लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ द कंटेंट इज highly quality wise. So thank you so much for agreeing for this, Saurav and Abhishek. I was happy being like to have both of you.
and it was incredible for me. बहुत सारे takeaways मिले, and I'm sure our viewers and listeners are going to enjoy this thoroughly. Thank you so much. आपको क्या क्या अच्छा लगा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके का कॉन्वर्सेशन स्टाइल ना पहली बार मेरे लिए तो है, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द व्यूअर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी टाइप की लगी थ्रू आउट दिस, और क्या क्या चीजें आपको लगी कि ये डिफरेंट है और इसमें मेरे को ज्यादा मजा आया कि ये इस तरीके से, जैसे देवलीना ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में करा पूरे सेशन को। तो आपको क्या क्या चीज अच्छी लगी इन द कमेंट्स इफ यू वुड नो, तो यू नो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस आल्सो। Definitely. एंड मजा बहुत आया, पानी बहुत पिया तो Hydrated रहे। and देवलीना थैंक यू सो मच, आपने हम दोनों की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करा दी है। But no, it was too much fun, and I really liked Saurav's की story, and commendable efforts by Devlina's team also, because जब वो दिखा रही थी तब उन्होंने एक जगह पे किया कि हमने कल इसका बीटा किया हुआ था वो शॉट ये पानी पीने वाले का, so that means that was a well prepared this thing, it wasn't like कि just बना दिया और हम बैठ के ये शुरू हो गए, so kudos to the team effort also. Yes. Yeah, it was very evident, and kudos to the entire team as well. तो ये था आज का वीडियो, और उम्मीद है आपको मजा आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट में बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट दैट व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस यू वुड लाइक टू सी इन द कंटेंट क्रिएटर सीरीज। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, so that you don't miss out on any new videos which are coming up on Icons Behind Brands. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।